Hello children, today I am going to explain you lesson 1 3 question. Third part, page number 12. First two paragraph I have already explained. Now we are going on third paragraph. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place, and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ले रखी थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैं जानता था कि आप अकेले ही उस सन्यासी से मिलने गए हैं, और मैंने निश्चय किया कि आप जब घर लौटेंगे आपको मैं मार दूंगा। पर दिन बीत गया और आप लौटे नहीं। इस कारण मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और मेरी भेंट आपके बॉडीगार्ड से हो गई, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उससे बचकर भागा, पर आपने आज मेरे घाव की मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर गया होता। मैं आपके प्राण लेना चाहता था और आपने मेरी रक्षा की। अब मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं स्वामी भक्त सेवक की तरह आपकी सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा अपने शत्रु से इतनी आसानी से मैत्री हो जाने से बहुत खुश था, और उसे एक मित्र भी मिल गया था। उसने उस व्यक्ति को न केवल माफ़ किया, पर यह भी बोला कि वह अपने नौकरों तथा डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। उसने उसकी संपत्ति भी वापस करने का वचन दे दिया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished one more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that he had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा कुटिया से बाहर निकला और उसने सन्यासी को खोजा। जाने से पूर्व उसने एक बार पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की इच्छा की। सन्यासी घुटनों के बल बैठा क्यारियों में जो पिछले दिन उसने खोदी थी उसमें बीज डाल रहा था। राजा सन्यासी के पास कहा, आपसे अंतिम बार निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तुम्हें तो पहले ही उत्तर मिल चुका था। सन्यासी अभी भी जमीन पर झुका हुआ और राजा को जो उसके सामने खड़ा था उसको उसके सामने दृष्टि उठाए हुए बोला, मुझे उत्तर भला कहाँ मिला? आपके कहने का आश्चर्य लगा। आशय क्या है आपका कहने का, वो मुझे समझ में नहीं आया। डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So, the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us
the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. सन्यासी ने बोला, क्या आप अभी नहीं समझे? यदि आपने कल मेरी दुर्बलता पर दया नहीं दिखाई होती और मेरी क्यारियाँ नहीं खोदी होती तो यहाँ से चले गए होते, मीन्स आप मर गए होते। फिर उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया होता, फिर आप यदि यही इच्छा करते कि आप यहीं रहते। इस कारण आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे, और मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा मेरी मदद करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब वह व्यक्ति हमारी ओर भाग कर आया तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वह था जब आप घायल की मरहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसकी मरहम पट्टी न की होती तो वह आपसे शांति मैत्री बनाने से पूर्व ही मर गया होता। इस कारण वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो काम आपने उसके लिए किया वह आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, there is only one time that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. लियो टॉल्स्टॉय। तो याद रखो कि एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और वह है वर्तमान। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह समय है जब आप कुछ कर सकने की स्थिति में होते हो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो आपके साथ एक विशेष क्षण में होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और हम लोग क्या किसी अन्य व्यक्ति से मिल पाएंगे या नहीं, ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति की सहायता करना होता है, क्योंकि हमें इस संसार में इसी काम के लिए भेजा गया है। इस लेसन का राइटर है लियो टॉल्स्टॉय। Now I am going to stop. Our lesson is over. Try to understand it.